नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑन द सेक्शन 15 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. Come to the section 15. It is the exclusion of time in certain other cases, and now please read it. Clause 1. In computing the period of limitation of any suit or application for the execution of a decree, and you please highlight this now. This is what? It is for any suit or application for the execution of decree. This is 15.1, clause 1. It is dealing with the in computing the period of limitation of any suit or application for the execution of a decree. Got it? So this is the first question of a prelims कि 51 section 15.1 applies to what? It applies to any suit or application for the execution of a decree. This is the first. Now कौन सा सूट है ये? The institution or the execution of which has been stayed by injunction or order. इस सूट का इंस्टीट्यूशन और इस एग्जीक्यूशन इस डिक्री का एग्जीक्यूशन दिस हैज बीन स्टेड बाय द इंजंक्शन और ऑर्डर. यू दिस सूट एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन the institution or execution of which has been stayed by the injunction order. तो आई थिंक यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट हम किस सूट की बात कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं. दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हैज बीन स्टेड और द एग्जीक्यूशन हैज बीन स्टेड. नाउ देन द टाइम ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और द ऑर्डर, द डे ऑन विच इट वाज इशूड और मेड एंड the day on which it was withdrawn shall be excluded. So you have to note it which periods are to be excluded. Now you can see it here. This is which day? The time of the continuance of the injunction or order. This is time period, continuance of the injunction. यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक रहा. This is the time of the continuance of the injunction order. Second, the day on which first it was issued or made and second day it was withdrawn. These both days. So these three periods are to be excluded. Number one, the time of the continuance of the injunction order. Secondly, the day on which it was issued and it was withdrawn. These three periods are to be excluded. When the institution or the execution has been stayed by the injunction or order. हो गया, कर लेंगे आप. नाउ यू सी द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आए इस पे. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, सेम लैंग्वेज 51 की. द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर shall be excluded. Means what periods are to be excluded. You have been asked which periods are to be excluded. The time of continuance of the injunction order, हाँ है ना? Yes. The day on which it was issued or made, ये भी होगा. And third, the day on which it was withdrawn, ये भी होगा. And answer हो जाएगा all of the above. So to solve such kind of questions, आपको you must remember, you must learn the barrack language of section 15. कि which periods are to be excluded. तीन period: continuance of execution order, injunction order. Second, the day on which it was made, the day on which it was withdrawn. This is, you see this period during which proceedings stand stayed by an injunction order is excluded. Under what section? Section 15. हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम आया. तो आप लोग देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में. नाउ कम टू 15.2. In computing the period of limitation for any suit. Suit कौन सा? Of which notice has been given or for which previous consent or sanction of the government or any other authority is required in accordance with the requirements of any law for the time being in force. You can understand it in this way. This is, see the slide. 15.2. 15.2 is dealing with what? In computing the period of limitation of any suit
विच सूट दिस इज ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन, जिसका नोटिस दिया गया है, एक बात, या प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड. तो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ सेक्शन 15(2). सेक्शन 15(2) इज डीलिंग विद द सूट, है ना, एंड विच काइंड ऑफ सूट, for which notice has been given or for which a previous consent or sanction is required from the government. Likewise, the section 15(1) was only for the injunction order. 15(2) is dealing with the suits where notice has been given or previous sanction or consent is required from the government. In that case, again you have to find out what period is to be excluded. What is excluded? The period of such notice, or as the case may be, the time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded. You see this slide, this, what is to be excluded? Period of such notice and time required for obtaining such consent or sanction. These are very simple sections, बहुत technical नहीं है, जैसे 14 technical था वैसा नहीं है ये. तो you just have to remember कि which periods have to be, but I am warning you, if you don't remember these time periods precisely, you will be in trouble, because 12, 13, 14, 15, 16, in everywhere they are giving you different time periods to be excluded, and these will get mixed. खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में आपके, तो वो खिचड़ी ना बने, चावल अलग दिखाई दें, दाल अलग दिखाई दे, मिक्स ना हो. फॉर दैट पर्पज आपको यू विल हैव टू फॉलो द ट्रिक्स ऑफ रिवीजन ओनली. रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज सो प्रिसाइसली कि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली विच पीरियड्स आर टू बी एक्सक्लूडेड, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल इन दैट केस. सही है, बढ़िए आगे को. नाउ प्लीज सी द एक्सप्लेनेशन. 15(2) in excluding the time required for obtaining the consent or sanction of the government or any other authority, the date on which the application was made for obtaining the consent or sanction and the date of receipt of the order of the government or other authority shall both be counted. It is not excluded, shall be counted. Everywhere you are, what you are saying, excluded, excluded. There, here both dates should be counted, and this is the question. See, यही क्वेश्चन आया कि ये जो डेट है, द डेट ऑन विच एप्लीकेशन वाज मेड, जिस डेट पर एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट लगाई गई, एंड द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर, इन दो दिनों को क्या करा जाएगा, एक्सक्लूड करा जाएगा, काउंट किया जाएगा. दीज मस्ट बी काउंटेड. एंड सी व्हेन यू डोंट रिमेंबर इट, तो हो सकता है बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग मैक्सिमम टाइम एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, तो यू विल टिक फर्स्ट. these two days must be counted. कब? This is in excluding the time required. कब? कौन से केस में? समझ लीजिए, देखो बार बार ढंग से समझ लो, इस बात को याद रखना. किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं जब हमें गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी है या गवर्नमेंट से कंसेंट लेनी है, देन उसकी कैलकुलेशन में इन एक्सक्लूडिंग द टाइम पीरियड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन से डेट को काउंट करना पड़ेगा? द डेट ऑन विच एप्लीकेशन वाज मेड एंड डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर. ये जो दोनों डेट्स हैं, जिस डेट को आपने एप्लीकेशन लगाई और जिस डेट को आपने ऑर्डर प्राप्त किया, वो दोनों आप काउंट करेंगे, और काउंट करके जो टोटल पीरियड आएगा उस पीरियड को आप फिर वहां से एक्सक्लूड करेंगे. इसमें अभी 15(2) पे किसी को अगर यहां तक समझ में आ गया, प्लीज रेज हैंड. नेक्स्ट 15(3). एक ही पैटर्न पढ़ना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, लेकिन क्योंकि कुछ कुछ छुपी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको हाईलाइट कर लेनी चाहिए. बस अगर वैसे हाईलाइट करके याद कर लेंगे तो फिर काम हो जाएगा. 15(3). In computing the period of limitation, same language for any suit or application for execution of a decree. 15(1) में भी सेम लैंग्वेज थी एंड 15(3) में सेम लैंग्वेज है. ठीक है, 15(1) की लैंग्वेज एंड 15(3) की लैंग्वेज सिमिलैरिटी हो गई यहाँ पर. अभी है, देखो क्या है, कहाँ गया.
in computing the period of limitation for any suit or application for execution of decree by any receiver or interim receiver, please highlight these things, by any receiver or interim receiver appointed in the proceedings for the adjudication of a person as an insolvent, or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceedings for the winding of a company. ये हुई डायरेक्ट लैंग्वेज. इसको आप इस स्लाइड में देखो, समझ में आएगा आपको किसकी बात कर रहे हैं हम. What we are doing, we are trying to compute, in computing the period of limitation for any suit or application for execution of a decree. This is a suit or execution of a decree. Got it? लेकिन by whom? What is the difference? What is the specialty in this? It is by any receiver or by any interim receiver. This suit is to be instituted by any receiver or by any liquidator or provisional liquidator. समझ में आनी बात नहीं है ये? कौन सा receiver? Who is appointed in the proceeding for the adjudication of a person as an insolvent? The receiver must be appointed in what proceedings? He must be appointed in the adjudication of a person as an insolvent. See, receiver may be appointed in so many cases, but we are dealing with the specific cases. नहीं बात समझ में आ रही है? This is the receiver. Do you understand the receiver? Receiver is a person, receiver is an officer of the court. ऐसा समझ लीजिए, किसी कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी प्रॉपर्टी का टेक ओवर कर लेना चाहिए कोर्ट को, किसी प्रॉपर्टी को पोजेशन में लेना चाहिए कोर्ट को, टू फैसिलिटेट द प्रोसीडिंग्स, आम भाषा में समझ लीजिए, देन कोर्ट कैन अपॉइंट यू एनी पर्सन एज द रिसीवर ऑफ दैट. जो रिसीवर है उसको आप ये कह सकते हैं दैट रिसीवर इज द आर्म ऑफ द कोर्ट. वो कोर्ट की बाह है, कोर्ट के ही हेल्प करता है वो. ही वर्क्स एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. तो रिसीवर कैन बी अपॉइंटेड इन number of cases, but in 15(3) we are dealing with the appointment of receiver only in one kind of proceedings, and that is adjudication of a person as an insolvent. So each and every word is important, therefore I have shown you in this slide with different colors in different blocks. Liquidator or provisional liquidator is appointed in the proceedings for winding up of a company, and these are the officers who are going to institute a suit or apply for the execution of a decree. समझ में आई बात अपनी है? तो 15(3) is dealing with the computing of the period of limitation. Limitation for what? Suit or application for execution. Got it? लेकिन by whom? By any receiver or interim receiver, या by any liquidator or provisional. And this receiver is appointed in the proceedings for the adjudication of a person as insolvent, or this liquidator is appointed in the winding up of a company. समझ में आई बात आई नहीं आपको ये? तो अब बेरेट को समझ पाओगे आप लोग इतने एफर्ट्स के बाद. 15(3). नाउ अगर ये है, अभी तो हमने सूट को पहचाना है कि कौन सी प्रोसीडिंग्स हैं, कौन सूट लेकर आ रहा है, कौन एग्जीक्यूट करने वाला है ये. अब इसमें क्या है? The period beginning with the date of institution of such proceedings. The period during which the period beginning with the date of institution of such proceedings and ending with the expiry of 3 months. And ये जो 3 months का टाइम है, प्लीज इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए. फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर और लिक्विडेटर एज द केस में भी शैल बी एक्सक्लूडेड. नाउ 15(3) में कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होना है? 15(3) में को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए. पहली बात रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 15(3) कि 15(3) डील किससे कर रही है? 15(3) इज डीलिंग विद द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर व्हाट? फॉर सूट और एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री. बाय हुम? बाय रिसीवर और इंटरिम रिसीवर, और बाय लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर. ठीक है? हु आर अपॉइंटेड in the adjudication as an insolvent or winding of a company.
इफ दीज आर द सूट्स विच पीरियड, सेकेंड पार्ट क्या है, विच पीरियड इज टू बी एक्सक्लूडेड. नाउ दिस इज द पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड. पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड कौन सा है? बिगिनिंग विद द पीरियड टू बी एक्सक्लूडेड क्या, बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. सपोज करो दीज प्रोसीडिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम 110 टू, इस डेट से स्टार्ट हुई है ना, एंड दिस एंडिंग विद द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द रिसीवर इज अपॉइंटेड ऑन द 1/12/2018. यहां से शुरुआत हुई डेट की, इंस्टीट्यूशन की, यहां पर अपॉइंटमेंट हुआ और इसके 3 महीने तक का, इन 3 महीने यहां से स्टार्ट होकर यहां तक का जो पीरियड है, दिस पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड. देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आप इसको दोबारा इस तरीके से पढ़िए. आप जो ब्लू लाइन में है ना, इसको पढ़िए पहले. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इसको छोड़ दीजिए अभी. अब जो ब्लू वाली लाइन है, केवल जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है उसको पढ़िए. फॉर एनी सूट, है ना, फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, किसके द्वारा? बाय एनी रिसीवर. तो दिस सूट इज टू बी इंस्टीट्यूटेड बाय द रिसीवर. समझ में नहीं बात है? वी आर डीलिंग विद द सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड बाय रिसीवर. आर यू गेटिंग or not? Or we are dealing with the application for execution by the receiver. तो it is the receiver who is going to institute a suit now. हाँ है ना, ये समझ में आ गई? अब same thing is applicable on the liquidator or provisional liquidator. Got it? Now ये receiver आएगा कहां से? This receiver is to be appointed in the proceedings for the adjudication of a person as an insolvent. तो रिसीवर का जन्म कहां होगा? इस प्रोसीडिंग्स में होगा. कौन सी प्रोसीडिंग्स? जिसमें हम किसी व्यक्ति को दिवालिया घोषित करने के लिए शुरुआत की गई है. अब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई. द प्रोसीडिंग्स हैज स्टार्टेड फॉर व्हाट? टू डिक्लेयर यू एज इंसॉल्वेंट. दिस बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स. सच प्रोसीडिंग्स मतलब प्रोसीडिंग्स फॉर डिक्लेयरिंग यू इंसॉल्वेंट. This proceeding was started on 1/10/2018. Got it? Now insolvency proceedings has been started now. After that, after some time, for the purpose of the suit जो हम बात कर रहे हैं, उसमें एक रिसीवर की नियुक्ति हुई है. And this date is what? 1/12 exemption के लिए. This is the date of appointment of receiver. And then after 3 months, पीरियड और काउंट कर लीजिए. तो अकॉर्डिंग टू 15(3) दिस होल पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड. गॉट इट? एंड सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ लिक्विडेटर. गॉट इट और नॉट? चलिए इसमें क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन कैसा है प्रीलिम्स में? फुल लैंग्वेज आ गई और देन यू विल हैव टू पीरियड द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment. ये 3 months की फिगर है, इस पर क्वेश्चन बन गया. पूरी पूरी लैंग्वेज दे गेव, फुल लैंग्वेज इन द क्वेश्चन. जो लैंग्वेज 15(3) की है, पूरी पूरी लैंग्वेज दे दी उन्होंने. और क्या पूछा आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कि ये 3 months हैं, 1 month, 3 months और 6 months. It is 3 months. Now please come to this 15(4). In computing the period of limitation for a suit for possession by a purchaser at a sale in execution of a decree, the time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. Now again, first is you will have to identify the proceedings. कौन सी proceedings हैं यहाँ पर? ये what are the proceedings? क्या है? These are the proceedings. 15(4) में what is a suit? Suit is for the possession. सही है. एंड पोजेशन बाय होम? बाय परचेजर. कौन सा परचेजर? एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री. एक डिक्री के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉपर्टी सेल हुई, यू परचेज दैट प्रॉपर्टी, तो यू आर द परचेजर ऑफ द दैट प्रॉपर्टी.
which property was sold in the execution of a decree. Got it or not? ठीक. Now you have bought the that property, but still you have not got the possession. Therefore you want to bring the suit for the possession. समझे आप बात? So again read this. In computing the period of limitation for a suit for possession, this suit is for possession. Now possession by a purchaser at a sale in execution of a decree. Then time to be excluded क्या होगा? The time during which a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. समझ में बात आपको नहीं? अब इसको समझ लीजिए. एक्चुअली क्या है, लिमिटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत सारे लॉज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अब मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको कि जो सेल प्रोसीडिंग्स में आपने परचेज किया, सपोज कीजिए एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में प्रॉपर्टी सेल हो गई और आपने बाई कर ली, ठीक, लेकिन आपको अभी तक उसका पोजेशन नहीं मिला उस प्रॉपर्टी का. इन बिटवीन क्या हुआ, उस सेल को ही सेट असाइड करने के लिए कि ये सेल ही गलत हुई है, उसके लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है. मतलब द सेल इन विच यू परचेज दैट प्रॉपर्टी इज बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट एंड फॉर दैट पर्पज प्रोसीडिंग्स आर सेट इन मोशन नाउ. तो उस सेल प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड करने में जो टाइम लगा, बिकॉज तब तक आप ला ही नहीं सकते, then the time during which a proceeding to set aside a sale has been prosecuted it is to be excluded. ये बात समझ में आ गई नहीं? रेज हैंड. देखिए दोबारा समझ लीजिए. ओम जय जगदीश फिल्म देखी आप लोगों ने, है ना? अब ये मान लीजिए जो ओम जय जगदीश का बंगला था वो बिकना है. उसके जो दे आर जजमेंट डेटर, तीनों भाई जो हैं जजमेंट डेटर हैं, वो केस हार गए हैं और उस एग्जीक्यूशन में अब वो बंगला बिकना है. रचिता मैडम ने वो बंगला खरीद लिया सेल में, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, सही है, पैसे डिपॉजिट हो गए, कब्जा भी मिला नहीं. अब ओम जय जगदीश तीनों भाइयों ने फिर उस सेल में अड़ंगा लगा दिया, उसको चैलेंज कर दिया कि दीज एग्जीक्यूशन, उसमें मान लीजिए रमेश जी आ गए कि ओम जय जगदीश के तो हो गए होगा, मेरा भी हिस्सा था इसमें. You cannot sell it without giving my interest in that. That Mr. Ramesh challenged that sale procedure, जो सेल प्रोसीडिंग्स है वो एग्जीक्यूशन सेल भी वो. अब क्या होगा, अब जो है जो परचेजर है, जो रचिता मैडम है, वो क्या कह रही है, भाई मैंने इतने पैसे दे दिया, मेरे सूट मिलना चाहिए. लेकिन अब यहाँ टाइम निकलता आ रहा है और वो सेल प्रोसीडिंग को चैलेंज करने की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें साल 2 साल खिंच गए ऐसे ही आपके भी. आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? मान लीजिए 4-5 साल निकल गए इस तरीके से ही. अब ये सूट लाना चाह रही है, सूट फॉर पोजेशन, तो इनको जो टाइम पीरियड मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए? क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग शुरू करी ही गई, जो सेल प्रोसीडिंग्स को कि भी ये सेल नल एंड वॉइड घोषित की जाए, उन सेल प्रोसीडिंग में 4-5 साल जो गए वो दैट पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड. हाँ है ना, समझ में आ गया बात? तो दिस इज 15(4). क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जैक्ट लैंग्वेज. इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट फॉर पोजेशन. देखिए मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपको, लिमिटेशन एक्ट में आप आइडेंटिफाई करना सूट कौन सा है, सूट फॉर पोजेशन है, गवर्नमेंट सैंक्शन वाला है, इंजंक्शन वाला मामला है, कौन सा है, अदरवाइज सब कुछ मिक्स हो जाएगा आपके उसमें. ये सूट फॉर पोजेशन बाय परचेजर एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, द टाइम ड्यूरिंग विच ए प्रोसीडिंग टू सेट असाइड हैज बीन, दिस इज टू बी एक्सक्लूडेड. समझ गए आप लोग? तो कौन सा टाइम एक्सक्लूड होना है, कौन सा टाइम काउंट होना है, कैलकुलेशन में सारा मैथमेटिक्स होना है. 15(5) बहुत डिफिकल्ट है भाई, शायद समझ में नहीं आया आसानी से आप लोगों को. सबसे मुश्किल यही है. 15(5) इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट. देखो अगेन कहीं सूट है कहीं एग्जीक्यूशन है, इसमें बहुत आपको देखना पड़ेगा ध्यान से. The time during which the defendant has been absent from India and from the territories outside India
under administration of the central government shall be excluded. Not difficult at all. क्या है? ये रहा 15(5) क्या है? In computing the period of limitation, कौन सा? Of any suit. So this is for the suit. Which period is to be excluded? The time during which the defendant has been absent. जिस पीरियड में डिफेंडेंट ही एब्सेंट रहा है, गायब रहा है, कहां से? फ्रॉम इंडिया. अब मान लीजिए मिस्टर अनुराग के 50,000 रुपए लेकर के माल्य से भागे हुए हैं. अब ये केस किस पे करेगा? है कि नहीं है? अब ये केस भले इंस्टीट्यूट करते, लेकिन कहां से लाएगा पकड़ के उसको? तो क्योंकि इंडिया से भागा हुआ है वो, तो जब तक माल्या को इंडिया में लाया नहीं जा सकता, तब तक वो जो पीरियड इसको है वो दैट पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड. द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया. ओके, या फिर कहां से? फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया से बाहर है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है, वहां से बाहर है वो, यानी कि हु इज एब्सेंट? डिफेंडेंट इज एब्सेंट. कहां से एब्सेंट है? इंडिया से एब्सेंट है. तो जब तक वो एब्सेंट है, ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट, दैट टाइम इज टू बी एक्सक्लूडेड. सेक्शन कौन सा है? 15(5). ये एग्जैक्टली वही पूरी लैंग्वेज आएगी. और इट इज टू बी एक्सक्लूडेड और इट इज टू बी काउंटेड. इट इज टू बी एक्सक्लूडेड. Section 15(5) Limitation Act does not apply to suits, appeals, execution proceedings. तो it does not apply to appeals. देखा आपने अपील का नाम सुना कहीं भी नहीं ना? It was suit or for the execution proceedings. It was never for appeal. Section 15 was never for appeal. किसी भी क्लॉज में नहीं आया 15 1 2 3 4 5 में. तो it is क्वेश्चन यहाँ से आया है. देखो सब कुछ याद कर लिया आप सबने कि कौन कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होगा, कौन कौन सा पीरियड काउंट होगा. क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? अपील में लागू होगा नहीं होगा. अब घूमते रह गए. अब यार सूट पड़ा था, एग्जीक्यूशन तो हो गई, अपील भी हो गई. तो ये तीन शब्द घूमते रहते हैं इसमें, कहीं सूट, कहीं अपील, कहीं एग्जीक्यूशन. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 15. तो दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा मेंस के लिए, एग्जाम के लिए. देखिए मेंस के आंसर राइटिंग में आपको एक टिप आपको मान लेनी चाहिए कि आपको हमेशा कैसे करना चाहिए कि आपको एक सिनॉप्सिस वाले नोट्स बना के रखने चाहिए. शॉर्ट नोट्स हमेशा बना के रखने चाहिए कि जो मेंस के एग्ज़ाम से पहले आप उन्हीं को देख करके रिवाइज करेंगे केवल पॉइंटर्स में, टॉपिक वाइज. जैसे यहाँ पर सेक्शन जितना लिमिटेशन एक्ट है, जैसे तो सेक्शन 5 में कौन कौन से पॉइंट्स हैं 1 2 3 शॉर्ट में करके, 6 से कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, कौन कौन से केस को याद रखना है, ताकि बहुत शॉर्ट में पॉइंटर्स में आपको लास्ट मिनट रिवीजन आप उससे कर पाएँ. अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे उसमें. थैंक यू वेरी मच.